Namaste and welcome to Yashodhwani, Ayurved's own voice. In today's episode of Words of Wisdom, Vaidya Yagujoshi sir takes us deeper into some of the most fundamental yet clinically significant concepts of Ayurveda. He begins by explaining the true meaning of Hetu and why understanding the cause is very foundation of successful treatment. Sir beautifully elaborates on the importance of Kala in the manifestation of disease and discusses the difference between Vipragrushta Hetu and Sannikrushta Hetu through practical insights. The discussion then moves to one of the most relevant subjects in modern healthcare, Vyadik Shamatva, the body's inherent ability to resist and overcome diseases. Sir explains the relationship between Vyadhi Pratikara Shakti and Bala, highlighting how these two share an Anyonya Sambandha and why preserving one's strength is essential for maintaining health. Another fascinating part of this episode is Sir's explanation on Ahara Sevana Niyamas, the classical principles of proper food consumption. He describes how neglecting these simple yet profound dietary rules gradually leads to ajirna, laying the foundation for numerous diseases. Finally, in a topic that resonates strongly even today, Sir discusses the often overlooked importance of Manasabala. Long before the concept of mind body medicine became popular, Ayurveda recognized that mental resilience plays a vital role in both disease resistance and recovery. Sir explains how physical strength, immunity, and mental strength together determine a person's capacity to fight and face illnesses. Filled with timeless wisdom, practical examples, and clinically relevant teachings, this episode is an essential viewing for Ayurveda students, practitioners, and anyone interested in understanding the deeper principles of Ayurvedic health. An initiative by Yashwanta Chikitsalaya, co-powered by Yashovijay Panchakarma Clinic. This is Yashodhwani, Ayurved's own voice. Do like, share, and subscribe to support our mission, preserving and spreading this invaluable knowledge for generations to come. Let's begin. दोष दूष्य आम अग्निबाध्य स्वर्गवैगुण्य इसके बारे में यानी 5 व्याधिघटकों के बारे में तो विवेचन मैंने किया, परंतु इसके साथ साथ और भी एक विचार महत्व का व्याधि जानने में वो है व्याधि प्रतिकार शक्ति, व्याधि क्षमत्व। इसके बारे में विचार करने के बिना व्याधि कैसे उत्पन्न होता है ये आपको ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए शुरू में मैं व्याधि क्षमत्व का विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। व्याधि क्षमत्व यानी क्या? व्याधि प्रतिकार शक्ति। व्याधि क्षमत्व की व्याख्या कहां भी नहीं दी। व्याधि प्रतिकार शक्ति ऐसा विवेचन किया जाता है, मगर उसका ज्यादा विवेचन शास्त्रकारों ने कहा भी नहीं किया। उसके 2 प्रकार चक्रदत्त ने बताए, व्याध्युत्पाद प्रतिबंधकत्व और व्याधि बल विरोधित्व। सच में गए तो क्या है अर्थ है इसका? एक प्रतिबंधकत्व ऐसा रहेगा जिससे व्याधि उत्पन्न ही नहीं होगा, और दूसरा व्याधि उत्पन्न हुआ तो भी अल्पबल व्याधि रहेगा। संक्रामक व्याधि जो कहते हैं उस व्याधियों में इस प्रकार आपको देखते हैं, जब संक्रामकता आती है तो अनेक लोग पीड़ित होते हैं। कुछ लोगों को गंभीर स्वरूप से पीड़ा होती है, कुछ में अल्प प्रमाण में होता है, तो कुछ लोगों में वही हेतुओं का सेवन करने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, रोग उत्पन्न। इसका कारण है व्याधि क्षमत्व। रोग प्रतिबंधकत्व और व्याध्युत्पाद बलिवत्व ये अलग अलग प्रकार मानने की अपेक्षा तुलनात्मक अच्छा और थोड़ा कम स्वरूप का मान सकते हैं। जैसे व्याधि क्षमत्व बहुत अच्छा हो तो उसे व्याधि उत्पन्न ही नहीं होगा, व्याधि क्षमत्व है मगर कम है तो उससे व्याधि उत्पन्न होगा मगर व्याधि का बल अधिक नहीं होगा। तो व्याध्युत्पाद प्रतिबंधकत्व और व्याधि बल विरोधित्व ऐसा वर्णन किया है। ये व्याधि क्षमत्व कैसे निर्माण होता है इस संदर्भ में कहां भी विवेचन नहीं। किन व्यक्तियों में व्याधि क्षमत्व रहता है इसका भी विवेचन नहीं है, मगर व्याधि अक्षम शरीर जिसमें व्याधि प्रतिकार शक्ति कम रहती है ऐसा व्यक्तियों का वर्णन चरक ने किया है। शरीराणी
अतिस्थूलानि अतिकृशानि अनिविष्टमंसशोणितास्थीनि दुर्बलानि असात्म्य आहार उपचितानि अल्पाहाराणि अल्पसत्वानि वा भवन्ति व्याधि अक्षम शरीराणि। इसके विपरीत हो तो उनमें व्याधि क्षमत्व रहता है, ऐसा कहा। क्या क्या कहा? कौन से शरीर में व्याधि क्षमत्व मिले? अतिस्थूल या अतिकृश, ये तो अष्टोन्नति में से महत्व के हैं, उनमें तो बल कम ही रहेगा। आगे चल के क्या कहा? आगे चल के क्या तो अनिविष्ट मांस शोणित अस्थि, मांस रक्त और अस्थि ये जब ठीक तरह से उपचित नहीं हुए, शरीर में बल होने के लिए, बल प्राप्त होने के लिए 3 महत्व के घटक द्रव्य हैं, रक्त, मांस और अस्थि। इन पर ये बल सामान्यतः अधिक रूप से अवलंबित रहता है। तो ये जब अनिविष्ट रहेंगे यानी अपाचित रहेंगे, ठीक तरह से उत्पन्न नहीं होंगे तो दौर्बल्य आ जाएगा। आगे कहा है कि किसी भी कारण से दौर्बल्य आया हो, पूर्वोत्पन्न व्याधि के कारण आया हो, किसी भी कारण वो दुर्बल शरीर हो तो भी आपको व्याधि क्षमत्व कम रहेगा। असात्म्य आहार उपचितानि, जो आहार नियमों का योग्य तरह से पालन न करके आहार लेते हैं, जो उष्णम स्निग्धम पात्रावत जीर्णे वीर्यावृद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणे नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन असन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, ऐसा आहार सेवन के जो नियम बताए गए, प्रकृति करण काला देशा संयोग उपयोगता ऐसे जो नियम बताए गए उनका पालन यदि नहीं किया तो क्या होगा? तो भी आहार का पचन ठीक तरह से नहीं होगा, शरीर भावों की निर्मिति ठीक तरह से नहीं होगी, उनमें भी दुर्बलता आ जाएगी। अल्प आहार लेने से भी यही होने वाला है। अल्प आहार लिया तो भी शरीर भावों की उत्पत्ति नहीं होगी और दुर्बलता आ जाएगी। तो इसका ही मतलब है बल का और व्याधि क्षमत्व का परस्पर संबंध है, अन्योन्य संबंध है। शरीर में दुर्बलता आ गई तो व्याधि क्षमत्व कम रहेगा। यदि बल अच्छा हो तो व्याधि प्रतिकार शक्ति भी अच्छी होगी। यहां एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, बल कम होना इसका मतलब पूरे शरीर का नहीं, एकाध अवयव का, एकाध स्थान का, एकाध स्रोतस का बल भी कम हो सकता है, वहां व्याधि प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। अन्यथा इसके विपरीत जो रहेंगे, जो ठीक तरह से आहार लेते हैं, जो अतिस्थूल या अतिकृश नहीं है, जो दुर्बल नहीं है, उनमें व्याधि प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, ऐसा आप कह सकते हैं। और व्याधि क्षमत्व के बारे में और भी एक बात करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। केवल शरीर बल पर अवलंबित रहता है ऐसा नहीं, तो मनोबल पर भी अवलंबित रहता है। जिसका मनोबल कम हो उसे निश्चित रूप से व्याधि अधिक हो जाएगा। इसलिए रुग्ण सत्ववान हो तो अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा। सत्ववान होना ही चाहिए, अल्पसत्व हो तो अनेक व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। जो अपने ग्रंथों में एक अग्नि संग्रह नाम का संग्रह बताया है, उसमें विषादो रोगवर्णनाम अग्रिम ऐसा कहा है। विषाद यानी क्या? विषाद यानी मैंने कहा कि मनोबल उससे कम हो जाता है दुख के कारण, मनोबल कम होने के कारण ये व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए विषाद और रोगवर्णना यानी मनोबल पर भी व्याधि क्षमत्व अवलंबित रहता है। अग्निबल मनोबल के साथ साथ नहीं, देहबल मनोबल के साथ साथ अग्निबल का भी विचार होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने विवेचन किया है। अग्नि यदि प्राकृत हो तो उसे विरुद्धम विद्युतम भवेत होने वाला है। अनेक प्रकार के व्याधि टल सकते हैं यदि अग्निबल अच्छा हो तो व्याधि क्षमत्व, ये दोष यानी व्याधि जो घटक जो है, धातु जो है, उनके मन के और अग्नि के दुर्बलता के कारण उत्पन्न होता है। इतना ही ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और फिर से मैं कहना चाहता हूं
कि पूरे शरीर का बल कम होना चाहिए, ऐसा नहीं। शरीर के केवल विशिष्ट भाग में यदि दुर्बलता आ गई तो वहां भी व्याधि प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, वहां श्रुतवैगुण्य निर्माण हो जाता है और वहां व्याधि का प्रादुर्भाव हो जाता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। आगे चल करके आप रोग के बारे में जब अधिक विचार करना चाहते हो तो जो निदान पंचक बताया है, दोष आप निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, इसके बारे में विवेचन करना आवश्यक ही है। उसके बारे में अब मैं विवेचन करना शुरू करता हूं। अब इसके आगे रोग संप्राप्ति का विचार करना है। रोग जानने के लिए कुछ ज्ञानोपाय कहे गए हैं, पंच ज्ञानोपाय, ऐसा इसका विवरण किया गया है। उसमें से एक संप्राप्ति है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ऐसे 5 ज्ञानोपाय ऐसे कहा गया है। निदानम पूर्व रूपाणी, रूपाणी उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम, ऐसा इसके बारे में सूत्र उपलब्ध है। संप्राप्ति का विवेचन करना है, यानी व्याधि कैसे घटित होता है इसका विचार करना है। और बाकी जो 4 है ज्ञानोपाय, रोग जानने के उपाय, उनके बारे में अति संक्षेप से मैं आपके सामने विचार रखना चाहता हूं, ज्यादा विस्तार करना नहीं चाहता। वह संप्राप्ति समझने के लिए आवश्यक जितना भाग है उसके बारे में मैं विवेचन आपके सामने जरूर करने वाला हूं। पहला जो है वो निदान, यानी हेतु, यानी कारण। निदानोत्थान कारण ही, ऐसा उसका वर्णन किया जाता है। उसमें जिस कारण से रोग उत्पन्न हो जाता है उसे उस व्याधि का हेतु या निदान कहा जाता है। व्याख्या क्या बताई? सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, इति कर्तव्यता के साथ, कर्तव्य जिन्होंने पूर्ण किया है, इति शब्द आप उपयोग में लाते हैं कार्य पूर्ण होने के बाद। अतः ये शुरू का शब्द और इति शब्द जो किया जाता है वो अंत में। जिसकी कर्तव्यता हो गई है, इति कर्तव्यता हो गई है, उसके साथ जो रहेगा उसे, ऐसे कारण को व्याधि का निदान करना है। ध्यान में रखिए पुनः, कर्तव्यता का पूर्ण होने के बिगर उसे कारण नहीं कर सकते। जैसे बारिश में भीगा हुआ हो तो उसे क्या होगा? यदि ज्वर उत्पन्न हुआ तो वो ज्वर का कारण, यदि काश उत्पन्न हुआ तो काश का कारण, यदि प्रतिशय उत्पन्न हो तो प्रतिशय का कारण। कर्तव्यता पूरा होने के पहले उस व्याधि, उस कारण को, उस व्याधि का हेतु नहीं कर सकते। इसलिए यहां कहा गया सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम। ऐसा रोगोत्पादक हेतु है जिसने अपनी कर्तव्यता पूरी की है, यानी जिसने व्याधि उत्पन्न किया है, तभी उसे उस व्याधि का हेतु कहते हैं। ठीक है, ये व्याख्या तो समझ में आ गई। मगर प्रकारों के बारे में जब देखें आप, सभी प्रकारों का विवरण मैं नहीं करने वाला हूं। ये व्याख्या ठीक तरह से समझने के लिए केवल उपयुक्त विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निदान के जो विविध प्रयोग में संधिकृष्ट, विप्रकृष्ट, प्राधानिक, व्यभिचारी वगैरह, इसमें संधिकृष्ट यानी क्या? संधिकृष्ट यानी नजीकता, विप्रकृष्ट यानी दूर का। ज्वर के बारे में कहना हो तो आज बारिश में भीग गया वगैरह वगैरह, जो कारण रहेगा वो संधिकृष्ट कारण रहेगा। विप्रकृष्ट कारण वो रुद्र प्रकोप जो महेश के कारण उत्पन्न हुआ, वो विप्रकृष्ट हो सकता है। तरतम भाव से इसमें आपको काल की दृष्टि से विचार करके संधिकृष्ट, विप्रकृष्ट का विचार करना चाहिए। प्राधानिक यानी क्या? इसमें भी काल का ही महत्व है। क्या काल का महत्व है? विषादी
जो सेवन करने से तत्काल उत्पन्न हो जाएगा उसे संधिकृष्ट विप्रकृष्ट साथ साथ प्राधानिक भी कहा गया। किसी भी वर्गीकरण में कोई एक हेतु ध्यान में रख करके जो विभाजन किया जाता है इसके आधार पर ये प्रकार बताए जाते हैं। संधिकृष्ट विप्रकृष्ट प्राधानिक वैसे ही बताया व्यभिचारी इसमें ही काल है, यानी जो कभी उत्पन्न ही नहीं करता व्याधि। यो दुर्बलत्वात् व्याधि करने असमर्था, जो व्याधि निर्माण करने में असमर्थ रहता है उसे व्यभिचारी हेतु कहते हैं। ध्यान में रखिए, व्याख्या क्या बताई? स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदान, जिसने कर्तव्य पूरा किया है, जिसने अपनी इति कर्तव्यता पूरी की है, ऐसे ही कारणों का हेतु करने वाले हैं। और यहां क्या गया? हेतु का प्रकार बताते हैं, जो दुर्बलत्वात् व्याधि करने असमर्था, जिसने व्याधि निर्माण ही नहीं किया तो उसे हेतु कैसे कर सकते हैं? ऐसा प्रकार कहना ही गलत नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नाम में भी है, वो सभ्य विचार है, यानी यहां हेत्वाभास है, इसने उत्पन्न किया होगा ऐसी आशंका बार बार आती है। हेत्वाभास को आपने पदार्थ विज्ञान शास्त्र में सीखा होगा, जो नहीं है वो है ऐसा भासमान होना, उसे हेत्वाभास कहते हैं। व्यवहार का उदाहरण लेना हो तो दो शब्द प्रयोग आप करते हैं, ये आरोपी है और ये गुनहगार है। गुनहगार ये हेतु है जिसने निश्चित है, जिस पर आरोप चाप दिया है, पर आरोपी आशंका है, अरे इसने किया होगा, सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। व्यभिचारी हेतु ऐसा है। व्यभिचार नाम से ये गृहित है कि यहाँ व्यभिचारी हेतु है, इसने उत्पन्न नहीं किया है, पर उत्पन्न होने की उसके संभावना तो जरूर है, उसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है, और इसीलिए व्यभिचारी हेतु नाम का भी हेतु बताया गया। निदान के बारे में ज्यादा तो मुझे कुछ करना नहीं है। पूर्व रूप जो है वो पूर्व रूप जो पहले उत्पन्न होते हैं शुरू के अवस्था में, जो अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्तम लक्षण देशाम पूर्व रूप स्मृतम। अव्यक्त है ना, क्या जो नहीं है वो लक्षण कैसे होंगे? अव्यक्त यानी अल्प व्यक्त, जो व्यक्त है मगर अल्प प्रमाण में व्यक्त है, उसे आपको पूर्व रूप करना चाहिए। ये पूर्व रूप कब उत्पन्न होते हैं? तो बताया गया है उत्पित्सुरामयो दोष, जो दोष उत्पन्न वाले, जो व्याधि उत्पन्न होने वाला है, उसमें दोष विशेष के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो अव्यक्त रूप में रहते हैं, उसे आप पूर्व रूप कर सकते हैं। पूर्व रूप का विचार करते समय और भी एक महत्व का सूत्र ध्यान में लेना चाहिए। सूत्र में कहा गया है, स्थान संश्रेण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। जो दोष जब स्थान संश्रित अवस्था में आते हैं, श्रोतोवैगुण्य के स्थान पर दोषों का जब स्थान संश्रय होता है, उस समय भावी व्याधि प्रबोधक ऐसे पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। ध्यान में रखिए कि जहां श्रोतोवैगुण्य होता है वहां ही दोष संग होता है और व्याधि उत्पन्न होता है। तो स्थान संश्रय अवस्था के पहले व्याधि के कोई लक्षण उपस्थित हो ही नहीं सकते। यहां व्याधि की शुरुआत होती है और आगे जो निर्माण होने वाला, व्यक्त होने वाले व्याधि है, उसके पूर्व रूप भी इस अवस्था में शुरू होते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। आगे का जो लक्षण है वो है रूप। पूर्व रूप अव्यक्त स्वरूप में जो लक्षण रहते हैं उनको पूर्व रूप कहा जाता है। वही जब अधिक व्यक्त हो जाते हैं, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण
रोग विनिश्चय करना आसान हो जाता है। व्याधि के जो सामान्य लक्षण कहे जाते हैं वो जिस समय उत्पन्न होते हैं उस अवस्था को रूपावस्था कहते हैं। व्याधि उत्पन्न होने के बाद यानी व्यक्त होने के बाद जो लक्षण निर्माण होते हैं उनको रूप कहते हैं। ऐसा कहा गया है, तदेव व्यक्तताम यदम, जो पूर्व रूप में थे वही अधिक व्यक्त होने पर उसे रूपत्व प्राप्त होता है और वो उत्पन्न व्याधि बोधक ऐसा लक्षण रहता है, ऐसा यहां कहा गया है। ये रूप भी दो प्रकार का रहेगा, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, इसके बारे में अधिक विवेचन मैं करने वाला हूं संप्राप्ति का विवेचन करते समय। आगे का जो ज्ञानोपाय है वो है उपशय अनुपशय। ये दो उपक्रम नहीं है, ये एक ही उपक्रम है। चिकित्सा करते समय जब व्याधि गूढ़लिंग रहता है, गूढ़लिंग यानी जिसका स्पष्टीकरण, जिसकी निश्चिति करना मुश्किल होता है, उस व्याधि को गूढ़लिंग कहते हैं। वो गूढ़लिंग कैसे उत्पन्न हो गया? तो अव्यक्त रहेंगे, बहुत कम लक्षण रहेंगे या बहुत ज्यादा लक्षण इकट्ठा हो जाएंगे तो भी ये रोग है, ये दूसरा रोग है, इसका व्याधि विनिश्चय करना कठिन होता है। ऐसे समय में आप उपशय अनुपशय का प्रयोग करते हैं। कुछ चिकित्सा देख करके उस चिकित्सा से यदि लाभ हुआ तो उसे उपशय कहेंगे, यदि लाभ नहीं हुआ, कई विपरीत ही लक्षण मिल गए तो उसे अनुपशय कहेंगे। तो ये दो प्रकार नहीं है। किस प्रकार के लक्षण मिलते हैं इस पर ये उपशय रहेगा या अनुपशय रहेगा, ये ध्यान में आएगा आपको। गूढ़लिंगम व्याधि उपशयानुपशयाभ्याम परीक्षित, तो ऐसा इसलिए कहा है संकीर्ण लक्षणे अनव्यक्त लक्षणे वा, यानी बहुत ज्यादा लक्षण रहते हैं कि वहां बहुत कम लक्षण रहते हैं, उस समय इस उपक्रम का उपयोग करना चाहिए, ऐसा यहां कहा गया। अनेक प्रकार बताए गए। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावम विद्यातुपशयम व्याधि सही सात्म्य स्मृता, ऐसी व्याख्या उपशय के बारे में की जाती है। वो हेतु विपरीत हो, व्याधि विपरीत हो, भय विपरीत हो, हेतु विपर्यस्तता अर्थकारी हो, या ऐसे अलग अलग प्रकार बता करके वह औषध कौन सा, अन्न कौन सा और विहार कौन सा, इसके आधार पर यह प्रकार सभी उपशय के बारे में ग्रंथों में वर्णित है। यह ध्यान में रखना चाहिए, उपशय एक ज्ञानोपाय है, ये चिकित्सोपक्रम नहीं है। जब व्याधि का विनिश्चय नहीं होता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार लाक्षणिक चिकित्सा जो है वो लाक्षणिक चिकित्सा है, उससे लक्षण कम हो जाएगा मगर व्याधि निश्चय नहीं होगा। चिकित्सा और उपशय इसमें बहुत अंतर है। उपशय व्याधि निश्चित होने के लिए किया जाता है, तो चिकित्सा व्याधि निश्चिति के बाद की जाती है। ग्रंथों में जो प्रकार बताए गए, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत वगैरह, और उसके जो उदाहरण बताए गए हैं वो पूर्णतः गलत है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि लाक्षणिक चिकित्सा के उदाहरण है, उसे व्याधि भी निश्चय नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में ले तो पहला उदाहरण लिया है अतिसारे स्तंभनम पाठादि। पहले ध्यान में रखना, पाठा ये स्तंभ द्रव्य नहीं है। फिर भी समझो अतिसारे स्तंभनम अयफेनादि, अयफेन तो स्तंभ द्रव्य है, इसका उपयोग करने से क्या होगा? धर्मल प्रवृत्ति कम हो जाएगी, उससे व्याधि भी निश्चय नहीं होगा। वो अतिसार था या प्रवाहिका थी या विसुचि का था, इसका विनिश्चय नहीं होगा। ये लाक्षणिक चिकित्सा का उदाहरण है, ये उपशय का उदाहरण नहीं है। ध्यान में रखिए, उपशय एक ज्ञानोपाय है। जब व्याधि गूढ़लिंग रहेगा उस समय इसका प्रयोग करके व्याधि विनिश्चय करने के लिए इसका उपयोग करना है। चिकित्सा और उपशय में बहुत अंतर है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया है।
ग्रंथ में जो 18 प्रकार के 18 उदाहरण दिए वो सब गलत है। फिर निश्चित रूप से आपको कहना पड़ेगा, उपविषय के उदाहरण बताने पड़ेंगे। जैसे तमक श्वास में आसीनो लबद्ध वैलक्ष्यम शयान श्वास पीड़िता, इसके आधार पर आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके आधार पर यानी यदि वो लेटने पर उसे ज्यादा तकलीफ होती हुई, उठ के बैठने पर यदि थोड़ा सा आराम लगता होगा तो ये दूसरा कोई व्याधि नहीं है, ये तमक श्वास है, ऐसा निदान आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये उपचय अनुपचय का बिहार का उदाहरण हो गया। तो ऐसे उदाहरण आपको लिखना चाहिए। इसके आगे ऐसे उदाहरण ढूंढना चाहिए, इकट्ठे करने चाहिए। मैंने मेरे किताब में जो विकृति विज्ञान के बारे में मैंने किताब लिखा है, उस किताब में इसका पूरा विवरण किया है। उसके 18 उदाहरण मैंने उस मेरे किताब में दिए हैं। इसका ज्यादा विवरण करने की यहां इस व्याख्यानमाला में आवश्यकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आगे बहुत महत्व का विषय का विवरण करना है, वो है संप्राप्ति का विवेचन। मैंने बहुत सी आशंकाएं पहले ही शुरू में आपके सामने रखी थी। जैसे ज्वर के बारे में कहा मैंने, ज्वर ये पित्त का व्याधि है, तो पित्त ज्वर यानी क्या? वातक कफज ज्वर में पित्त रहेगा तो सांधिपातिक में और वातक कफ में फर्क क्या रहेगा? ग्रंथों में तो इसका विवरण कोई नहीं है, पर वो आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका निश्चितीकरण करना पड़ेगा। ऐसे प्रकार क्यों बताए गए, इसका भी विवरण करना पड़ेगा। और भी एक उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे चिकित्सा के प्रकार बताते समय दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक और उभय प्रत्यनिक चिकित्सा कही गई। केवल दोषों का विचार करके जो चिकित्सा की जाए वो दोष प्रत्यनिक है। जब आप व्याधि प्रत्यनिक कहेंगे तो पूरा संप्राप्ति का विचार किया ही नहीं चाहिए। वहां दोष दूष्य कौन सा स्थान है, कौन से श्रुत दृष्टि है, इसका विचार करने के बिना वो चिकित्सा ही आप नहीं कर सकेंगे। तो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा के समय दोष का विचार किया ही रहता है, तो उभय प्रत्यनिक चिकित्सा अलग कैसे हो सकती है? क्या अर्थ है इसका? दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक और उभय प्रत्यनिक, इसका अर्थ क्या है? ये सभी बातें आपको ध्यान में लेनी चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। मैं एक अलग ही विचार संप्राप्ति के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो ग्रंथोक्त नहीं है। ग्रंथ में सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति, ये दो शब्द प्रयोग जरूर आए हैं। सामान्य संप्राप्ति मा हो, विशेष संप्राप्ति मा हो, ऐसे शब्द प्रयोग तो ग्रंथों में मिलेंगे। मगर सामान्य संप्राप्ति यानी क्या, विशेष संप्राप्ति यानी क्या, सामान्य संप्राप्ति कैसे घटित होती है, उसके क्या कारण रहते हैं, विशेष संप्राप्ति कैसे घटित होती है, उसके क्या कारण रहते हैं, इन सबों का विवेचन करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करने से चिकित्सा सुविधा उत्पन्न हो जाएगी, चिकित्सा सुकर हो जाएगी, रुग्णों को अधिक अच्छा लाभ आप दे सकेंगे। और इसीलिए संप्राप्ति का अधिक विचार करना ही होगा। पहले ग्रंथों को जो वर्णन है उसके बारे में विचार करेंगे, और बाद में मेरे जो अलग मत है उसके बारे में मैं विवेचन करने वाला हूं। As we conclude today's episode, let's remember that Ayurveda teaches us to look beyond disease. It teaches us to understand its cause, strengthen our body's natural defenses, and cultivate a resilient mind. The concepts of Hetu, Vedic Shamatva, Bala, and Manas Bala are not merely theoretical principles, they are timeless guides for leading a healthier and more balanced life. We hope the invaluable teachings of Vaidya Yogoshi Sir continue to inspire your journey in Ayurveda and encourage you to explore its wisdom with greater depth and understanding. Thank you for being a part of Yashodhwani, Ayurved's own voice. In the next episode, we are going to discuss the much important topic of pathogenesis, that is Samprapti, in greater detail. Stay tuned for the next episode coming up on Thursday. Do like, share, and subscribe, and do leave your thoughts and questions in the comments. Your encouragement helps us preserve and share the priceless legacy of Vaidya Yogoshi Sir with future generation. Until next time,
Stay healthy, stay curious, and continue learning the timeless science of Ayurveda. Namaste.